Hi students, welcome to my YouTube channel JE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important MCQs on solution of triangle. In the last lecture we have discussed the formulas of solution of triangle of the topic trigonometric function for MHTCP. Now in this lecture 12 important MCQs will be solved for you, and these MCQs are very important. So students, before starting the lecture, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. See the first question number 1 of solution of triangle, and in this question we have given in triangle ABC we have to find the value of b minus c upon a into cos of a by 2. In triangle ABC, b minus c upon a into cos of a by 2, and the given options are sin of a minus b by 2, second option is sin of b minus c by 2, third option is sin of c minus a by 2, and the last option is sin of b plus c by 2. So see the question number 1, and here I have to find the value of b minus c by a, b minus c by a into cos of a by 2, and the condition is of triangle. In triangle ABC, solution of triangle topic है, उसके MCQ हम solve कर रहे हैं. So all the problems are related to triangle. So in the last lecture we have discussed sine rule, cosine rule, projection rule, Napier's analogy, area of triangle. ये सारे फॉर्मूले हमने देखे हैं. उन्हीं फॉर्मूलेज को यूज करके इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. सो वन बाय वन यू सी ऑल द एमसीक्यूज केयरफुली, ताकि आप भी इन एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर सके. इसी टाइप के एमसीक्यूज आप भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी टाइप के एमसीक्यूज एमएचटी सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, and I have to find the value of b minus c by a into cos of a by 2. I will use sine rule. I will use sine rule. So sine rule में क्या होता है? a upon sin a. What is sine rule? Sine rule देखिए, a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to k. यहाँ पे 2r होता है, लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय 2r को कैंसिल करके k कंसिडर करेंगे. सो हाउ टू यूज साइन रूल हियर? हियर b इज इक्वल टू k साइन b, a इक्वल टू k साइन a होता है, b इक्वल टू k साइन b, c इक्वल टू k साइन c. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम हियर, दैट इज k साइन b. c क्या होगा? k साइन c. a क्या होगा? k साइन a. सो न्यूमरेटर से k कॉमन निकलेगा और नीचे का k के कैंसिल हो जाएगा. So directly I will write b as sin b, c as sin c upon a as sin a. So taking k common from numerator और a k cancel हो चुका है, into this cos of a by 2. तो इस तरह से मैंने साइन रूल को यूज किया है. Now the next step, what is the next step? Now I will use factorization formula, sin c minus sin d. So using this sin c minus sin d, I will get 2 cos of b plus c by 2 into sin of b minus c by 2 upon this sin a. उसको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 sin a by 2 into cos a by 2 into this cos of a by 2. तो a cos a by 2 and this cos a by 2 will get cancelled. This 2 will get cancelled. अब मैंने 11 के फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में रिवाइज करके दिए थे, और मैंने बोला भी था कि these formulas are very important. So what is cos of b plus c by 2? So in triangle ABC, cos of b plus c by 2 क्या होता है? So this is equal to what? Sin of a by 2. This formula is very important. ये सभी फॉर्मूलेज मैंने आपको डिस्कस करके दिए थे. साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन सी, कॉस ऑफ ए प्लस बी,
minus cos c, sin of a plus b by 2 is cos c by 2, cos of a plus b by 2 is sin c by 2. So cos of b plus c by 2 and sin a by 2 सेम है, तो ये टर्म्स भी कैंसिल होगी and the remaining term is only sin of b minus c by 2. And this is the answer to my question number 1, and this is in the option B, sin of b minus c by 2. So this is the solution of first MCQ of solution of triangle. Now we will see the next question number 2 of solution of triangle. See the next question, and in the second question what we are given, what is the in second question, see here the question number 2 of solution of triangle. So in triangle ABC we have given 2 sin B into cos C equal to sin. In triangle ABC we have given the condition 2 sin B into cos C, 2 sin B into cos C equal to sin. So this is the given condition in triangle ABC, और हमें पूछा है then triangle ABC is, तो ट्रायंगल किस टाइप का होगा. एंड द ऑप्शंस इन द गिवन क्वेश्चन आर फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड में दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड में है आइसोसेलेस ट्रायंगल और फोर्थ में है राइट एंगल प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो किस टाइप का ट्रायंगल इस कंडीशन से फॉर्म होता है. गिवन कंडीशन इज 2 sin b into cos c equal to sin a. सो अगेन आई विल यूज साइन रूल. तो अब साइन रूल मैं किस तरह से यूज करूंगा. साइन रूल हमें इस तरह से भी यूज करते आता है. साइन a बाई ए इक्वल टू साइन b बाई बी इक्वल टू साइन c बाई सी इक्वल टू के. सो साइन a इज ए के, साइन b इज बी के एंड साइन c इज सी के. सो हियर 2 इंटू साइन b को लिखूंगा मैं b के इंटू दिस कॉस सी, साइन a इज a इंटू के, ए के. ओके, सो मैंने इस तरह से साइन रूल यूज किया है. अब देखिए, सो दिस के विल गेट कैंसल, दिस के एंड दिस के विल गेट कैंसल. नाउ आई हैव 2b इंटू कॉस सी इक्वल टू ए. नाउ 2b इंटू, अब इस कॉस ऑफ सी को मैं कोसाइन रूल यूज करूंगा. आई विल यूज कोसाइन रूल. सो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज कॉस सी बाय कोसाइन रूल. So by cosine rule cos c is a square plus b square minus c square upon 2ab is equal to this a. अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है. This 2b and this 2b will get cancelled. Now I have the condition a square plus b square minus c square equal to मुझे मिला है a square. Again this a square will get cancelled. b square is equal to c square और b equal to c मिला है. So b equal to c means two sides of the triangle are equal. Two sides of the triangle are equal. b means AC. b means what? AC. And c means what? E. So length of AC is equal to length of AT. Two sides are equal. It means the triangle is isosceles triangle, and therefore which option will be correct? सो ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऑप्शन देखिए, दैट इज इन द ऑप्शन सी. सो दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सो स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस करने की है, फॉर्मूलेज भी आपको देखने के हैं, तभी आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. So in third question, what we have given, see the question number 3. So in this question I have given in triangle ABC, if cos A equal to sin B minus cos C, then the triangle ABC is. Okay, so I will write the given condition here. So which condition is given? See the given condition in this problem, cos A is equal to sin B minus cos C. Sin of B minus cos. This is the given condition and the given options. Then triangle ABC is क्या options है, and the options are again same as next earlier question number 2.
equilateral triangle, right angle triangle, isosceles triangle, and the last is isosceles and right angle triangle. So फिर से इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, cos A प्लस cos C विल बी इक्वल टू sin B. cos की टर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर की. अब देखिए कौन सा फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, cos C प्लस cos D. आई कैन यूज cos C प्लस cos D. So using cos C plus cos D, I will get 2 cos of factorization का फॉर्मूला यूज करने का है. 2 cos of A plus C by 2 into cos of A minus C by 2 is equal to sin B को हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे. So that is 2 sin B by 2 into cos of B by 2. Okay. So again this 2 will get cancelled. अब भी मैंने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, cos of A plus C by 2 is equal to sin B by 2. In triangle ABC, cos of A plus C by 2 is equal to sin of B by 2. So this and this will also get cancelled. Now cos of this equal to cos of this. cos के दोनों एंगल का cos रेशो सेम है. It means both angles are same. A minus C by 2 will be equal to what? B by 2. So again this 2 will get cancelled and I have the condition A minus C equal to B, and from this I can write A equal to B plus C. Okay. अब ट्रायंगल किस टाइप का है, एंगल क्या मिलेगा, तब उससे हमें ट्रायंगल का टाइप किस फॉर्म में आता है वो देखने. सो इन ट्रायंगल ABC it means we have sum of angles of the triangle is 180 degree. A plus B plus C equal to pi. So मैं इस B plus C को फिर से A लिख सकता हूँ. So it is A plus A equal to pi. B plus C को मैंने फिर से A लिखा है. This B plus C is equal to A. So A plus A equal to pi. 2A equal to pi और A क्या मिला है, pi by 2. So A is pi by 2 means triangle is right angle triangle, and this right angle triangle is in the option B. So option B is correct and the triangle formed is right angle triangle. So this is the solution of question number 3. See students, next question solve करते हैं. Question number 4. Question number 4, see on the board, question number 4. So what is the question number 4? Question number 4 पढ़ते हैं. इन ट्रायंगल ABC हमें कंडीशन दिए है cos A upon A equal to cos B upon B. Then the triangle is, then it is. And the options are again isosceles triangle, second option is right angle triangle, third isosceles plus right angle triangle, and the last option is equilateral triangle. तो given कंडीशन से हम सॉल्व करते हैं. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ओनली 1 और 2 स्टेप्स में इसका आंसर मिलेगा. So given condition is cos of A upon A equal to cos of B upon B. Okay. तो इसमें भी हम साइन रूल यूज कर सकते हैं. 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम इजी मेथड यूज करेंगे, साइन रूल यूज करेंगे. cos of A अपॉन A इक्वल टू, अब A बाय साइन A इक्वल टू K, तो A इक्वल टू क्या होगा, K साइन A. A इक्वल टू क्या होगा, K साइन A. अब आपको समझ में आया होगा साइन रूल किस तरह से यूज करने का है. cos B अपॉन B. सो B अपॉन साइन B इक्वल टू K, तो B क्या होगा, K साइन B. B क्या होगा, K साइन B. सो अगेन दिस K will get cancelled. cos by sin, cos A by sin A, cot A. ओके. एंड cos B by sin B क्या होगा, cot B. अब A का कॉट और B का कॉट सेम है. इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सो एंगल A एंड एंगल B आर सेम. 2 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल. इट मीन्स द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड द आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट. सो दिस इज द question number 4 and answer to this question is first, that is option A, and the triangle formed is isosceles triangle as the 2 angles are equal. See the next question number 5. See the next question number 5. Question number 5 देखिए. So what is given in the question number 5? So
In question number 5, it is given that triangle ABC is right angled at C. Triangle ABC is right angled at C, and I have to find the value of C minus C into sin A into tan of A by 2. So this is the question number 5, and the options are A, B, C, and B square. So this triangle is right angled at C. It means angle C is equal to pi by 2. It is already given. Triangle is right angled at C. C is pi by 2. Now the given condition is हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी की है. So we have to find the value of C minus C into sin A into tan A by 2. Into sin A into tan of A by 2. Okay. लास्ट में हमें को इसका भी यूज करने का है. एंगल C is pi by 2. So here how I can simplify this C minus C into sin A. So sin A हाफ एंगल में है तो इसे भी मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करता हूँ. साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. साइन थीटा इज 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. तो साइन A मिलेगा 2 sin A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2. अब ये tan A बाई 2, तो इसको साइन कॉस में लिखेंगे तो A बनेगा साइन ऑफ A बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ A बाई 2. राइट. नाउ सी हियर दिस कॉस A बाई 2 will get cancelled with this cos A by 2. Cos A by 2, cos A by 2 will get cancelled. Now this is C minus C into this 2 sin A by 2 into sin A by 2 मिलेगा sin square of A by 2. Now taking C common, C को common लेते हैं. So by taking C common, I will get 1 minus 2 sin square of A by 2. So 1 minus 2 sin square of A by 2. ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है? हाफ एंगल में है तो कॉस ऑफ थीटा के मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं. कॉस ऑफ 2 थीटा के 4, वैसे ही कॉस थीटा हाफ एंगल में 4 फॉर्मूलेज हैं. कॉस ऑफ थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सेकंड इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. थर्ड वन इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एंड फोर्थ वन इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. सो सेकंड फॉर्मूला है कॉस थीटा का A. सो कॉस ऑफ A इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2, तो इसको मैं लिखूंगा कॉस ऑफ A. लेकिन ये टर्म मुझे ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही है. ऑप्शंस आर A, B, C, B स्क्वायर. ये 4 ऑप्शन है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है. इसका मतलब मुझे इससे नेक्स्ट स्टेप में जाने का है. इसे किस तरह से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो इसका यूज मुझे करने का है. एंगल C इज पाई बाई 2. ओके. So this is the right angle triangle, and this triangle is right angled at C. Right angled at C, it is given. So C यानी हाइपोटेनियस C होगा, ABC होगा, AC की लेंथ B होगी, BC की लेंथ A होगी. So this is C into cos of A. देखिए cos of A क्या होगा? B by C. cos of A क्या होगा? B by C adjacent upon hypotenuse. So this CC will get cancelled, and the answer to this question is B. So B is correct, and this is again option B. So option B is correct. A, B, C, B square. So इसमें का second option है. So this is the question number 5. Now see the next question number 6. Next question solve करते हैं. Question number 6 of solution of triangle for MST CET trigonometric function का second important part, sine rule, cosine rule, projection rule, Napier's analogy, area of triangle. ये सभी फॉर्मूलेज आपको प्रैक्टिस करते से ही याद हो जाएंगे. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. See the next question number 6, and this is the question number 6 on the board. क्या दिया है क्वेश्चन में? In triangle ABC, C square equal to A square plus B square. Now what? ये किस ट्रायंगल की कंडीशन है? राइट एंगल ट्रायंगल है at C. So C square equal to A square plus B square दिया है, and I have to find the value of 4s into s minus a into s minus b into s minus c. तो पहले मैं गिवन कंडीशन लिख लेता हूँ. C square equal to A square plus B square.
So it means the triangle is right angled at C. This angle is A, this angle is B, this is A, this is C, this is B. C square equal to A square plus B square, right angle triangle at C. Okay. So I have to find the value of 4s into s minus A into s minus B into s minus C. Now see these terms. ये कहाँ पे देखा है? एक टर्म किस फॉर्मूले में आपने देखी है? यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ये हीरोज फार्मूला है. रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. सो आई हैव दिस डेल्टा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एट स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सो दिस 4 एज इट इज. अब ये रूट में टर्म है स्क्वायर किए तो फिर डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा. अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो डेल्टा स्क्वायर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का स्क्वायर क्या होगा? यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सो आई विल रिप्लेस दिस यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाय दिस डेल्टा स्क्वायर. ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. अब एरिया क्या है? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एट सी. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? फर्स्ट आई विल राइट दिस 4 एंड दिस डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का स्क्वायर. सो 4 एज इट इज. दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट सी. इसका एरिया लिखने का है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. तो बेस की हाइट ए, तो इसका एरिया होगा 1/2 AB. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बाकी ट्रायंगल्स के एरिया के फॉर्मूले भी यूज होते हैं. सिर्फ हीरोज फार्मूला और बाकी जो फॉर्मूले हमने देखे हैं 1/2 BC इंटू साइन ए, 1/2 AC इंटू साइन बी, 1/2 AB इंटू साइन सी. हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो गिवन बाय 1/√3 इंटू हाइट स्क्वायर. एरिया ऑफ लीनियर ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट. ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद होनी चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. सो दिस इज 4 into 1/4 a square plus b square. So this 4 will get cancelled and answer is a square b square. So answer a square b square is in the last option D. So this last option is correct. Okay students, now see the next question number 7 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं. फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Without the formulas of solution of triangle along with the formulas of trigonometry, trigonometry काफ़ी important है, वो भी फॉर्मूले यूज होते हैं. और करंट टॉपिक जो है उसके फॉर्मूले भी आपको उसमें एडिशन में यूज करने पड़ते हैं. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. सी ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है. इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इंटू tan of a/2 plus tan of b/2. So this is the question number 7 and my options are 2c into cot a/2, 2c into cot c/2 first option. मेरा सेकंड ऑप्शन है 2a into cot a/2, थर्ड ऑप्शन इज 2b into cot b/2 and the last option is tan of c/2. So here इन ट्रायंगल ABC मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है a plus b plus c into this tan of a/2 plus tan of b/2. Okay. So a plus b plus c is 2s. A plus b plus c is 2s. Perimeter of the triangle semi perimeter होता है yes a plus b plus c/2. So 2 into s will be equal to a plus b plus c. Therefore a plus b plus c is 2s. Okay. Now हमें यूज करने के हैं formulas of tan a/2 and tan of b/2. तो how you will write the formula of tan a/2 अगर आपके ध्यान में नहीं है. सो साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 का फॉर्मूला आप कर लीजिए. साइन बाय कॉस तो आपको tan मिलेगा.
तो साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू करेंगे तो tan ए बाई टू का फॉर्मूला आपको ध्यान में आया होगा। साइन ए बाई टू का न्यूमरेटर यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी होता है, और कॉस ए बाई टू में रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी होता है। तो बी सी कैंसिल करके हमें यहाँ पे मिलता है यस इंटू एस माइनस ए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ ए बाई टू। सिमिलरली आई कैन राइट द tan ऑफ बी बाई टू हियर। सो tan ऑफ बी बाई टू इसका मतलब मैं नीचे लिख लेता हूँ यस इंटू एस माइनस बी। अब बचा ए और सी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। ओके, नाउ द सिंप्लीफिकेशन इज देयर। अब मुझे ये ध्यान में रखने का है, दिस इज tan ए बाई टू, दिस इज tan बी बाई टू, या इसे मैं tan बी बाई टू लिख सकता हूँ, इसे मैं tan ए बाई टू लिख सकता हूँ। इसी फॉर्म में मुझे आंसर लिखने का है, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में है cot ए बाई टू, cot बी बाई टू, cot सी बाई टू, इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो इसी फॉर्म में मुझे सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। सो दिस इज 2s। नाउ सी हियर what I can take common from this। so ये रूट यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, तो ये रूट एस कॉमन निकलेगा। ये रूट एस विल बी कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। अगेन हियर एस माइनस सी, तो ये रूट ऑफ एस माइनस सी भी कॉमन निकलेगा। ये ऊपर का 2s और ये रूट ऑफ एस माइनस सी इज अगेन कॉमन। So here will be root of s minus b upon root of s minus a, right? s minus c का रूट तो बाहर निकला है कॉमन में, so it is root of s minus a upon root of s minus b. Yes. Now see here. So this is 2 root of s by root of यस, रूट यस होगा, सो इट इज रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस सी। और इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, रूट ऑफ यस माइनस बी इंटू यस माइनस बी होगा यस माइनस बी, रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू यस माइनस ए होगा रूट ऑफ यस माइनस ए, एंड दिस इज रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू रूट ऑफ यस माइनस बी, राइट। अब देखें 2 इंटू रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस सी अपॉन दिस रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू रूट ऑफ यस माइनस बी। ये होगा 2s माइनस ए प्लस बी। यस प्लस यस क्या होगा 2s, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये बनेगा a प्लस बी। अब इस 2s को मैं फिर से लिख सकता हूँ, इस 2s को मैं फिर से लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी। सो a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी 2s होता है। सो 2s को अगर मैं a प्लस बी प्लस सी लिखता हूँ तो उसमें से a प्लस बी माइनस करने का है, तो बचेगा c। सो दैट इज c। ओके, अब देखिए आंसर आ चुका है, ये 2c, दिस इज 2c। अब इस टर्म को आप ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व दिस टर्म, ये मैंने 2c पहले लिख चुका है। अब tan ए बाई टू देखिए s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ओके, तो cot ए बाई टू होता है s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। cot इसका रेसिप्रोकल, ये तो cot का फॉर्मूला बनेगा। अब ये नीचे 2 रूट है, ऊपर एक रूट है, नीचे है s माइनस ए एस माइनस बी और ऊपर s इंटू एस माइनस सी। So root of s into s minus c लिख रहा है, it means this is the reciprocal of tan a by 2. This is the reciprocal of what? Tan c by 2. Sorry, this is the reciprocal of tan of c by 2. So the reciprocal of tan of c by 2 is what? Cot c by 2. क्योंकि tan c by 2 का फॉर्मूला क्या होगा? tan c by 2 का फॉर्मूला क्या होगा? रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। सो दिस इज 2c इंटू कॉट सी बाई टू। सी द फॉर्मूला ऑफ tan c बाई टू आपके समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर 2c इंटू कॉट सी बाई टू, एंड दिस इज इन द ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दिस वाज 7। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फॉर MST CET students. All the questions are selected
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने सिलेक्ट करके सॉल्व करके दे रहा हूँ. सो प्लीज सभी क्वेश्चंस को सीरियसली केयरफुली आप देखिए. उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं फॉर्मूले किस तरह से यूज कर रहा हूँ आप भी उसको स्टडी कीजिए ताकि आप भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड सी द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द बोर्ड. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में? So in triangle ABC, I have to find the value of cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2. Okay. And the options to this question are S square by delta. First option, second option is 2S square by delta. Third option is 2S by delta square. And the last option is S by delta square. तो delta के फॉर्म में हमें आंसर लाने का है. And I have to find the value of क्या दिया है इक्वेशन? cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2. ओके, तो ऑप्शंस में मुझे डेल्टा दिखाई दे रहा है, तो मैं इन फॉर्मूलेस को cot डेल्टा में मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ वो पहले हम देखेंगे. सी हियर स्टूडेंट्स, tan ऑफ A by 2 देखिए. tan ऑफ A by 2 का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए. सो अगर मैं इसको रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूँ और रूट ऑफ यस माइनस ए से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी. रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी ऊपर डेल्टा मिलेगा. राइट, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी. अब नीचे देखिए, रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए इंटू रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए. रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, सो वो बनेगा यस इंटू यस माइनस ए. राइट, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, तो tan A by 2 ये आ गया है, तो हमें cot A by 2 लिखने का है. हमें क्या लिखने का है? cot A by 2. तो cot A by 2 क्या मिलेगा? cot A by 2 क्या मिलेगा? यस इंटू यस माइनस ए. tan A by 2 है cot, इसका रेसिप्रोकल होगा यस इंटू यस माइनस ए, यस इंटू यस माइनस ए बाय डेल्टा. अब cot B by 2 cot C by 2 तो इजीली लिख सकते हैं क्योंकि हमें cot A by 2 मिल गया है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. cot A by 2 अगर A होगा तो cot B by 2 होगा यस इंटू यस माइनस B by डेल्टा. cot C by 2 होगा यस इंटू यस माइनस C by डेल्टा. अब डेल्टा आ चुका है तो डेल्टा के फॉर्म में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसे आप नोट कीजिए. tan A by 2 डेल्टा अपॉन यस इंटू यस माइनस ए, tan B by 2 डेल्टा अपॉन यस इंटू यस माइनस बी, tan C by 2 डेल्टा अपॉन यस इंटू यस माइनस सी. एंड these are cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 in terms of delta. Now see students, अब सिंप्लीफिकेशन इजी हो चुका है. सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ से यस बाय डेल्टा को मैं कॉमन ले लेता हूँ. यस बाय डेल्टा, यस बाय डेल्टा, यस बाय डेल्टा टेकिंग कॉमन. अब यस माइनस ए प्लस यस माइनस बी प्लस यस माइनस सी, तो यस प्लस यस 3 यस बनेंगे. 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उसमें से माइनस कॉमन, फिर बनेगा ए प्लस बी प्लस सी. सो दिस इज यस बाय डेल्टा. 3s a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 2s. फॉर्मूलेज देखिए, 2s पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी. सो 3s माइनस 2s इज यस इंटू दिस यस, तो ये बन गया यस स्क्वायर बाय डेल्टा. सो यस स्क्वायर बाय डेल्टा इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 8. तो यस स्क्वायर बाय डेल्टा किस ऑप्शन में है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन, एस स्क्वायर बाय डेल्टा. So this was 8. See the next question number 9. फॉर्मूलेज का सही उपयोग करके आप कम स्टेप में आंसर ला सकते हो. यहाँ पे मैं अगर वो लंबे फॉर्मूले यूज करता था तो मेरा टाइम बढ़ जाता था, ज़्यादा वक्त लगता था. प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जिससे आपका टाइम मिनिमम हो सकता है. प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द MCQs फॉर MST CET. MST CET के क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. देयरफॉर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद द फॉर्मूलेज. मैथ CET में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो. प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर
8. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CET में भी इसके पूछे जाने की चांसेस है. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्या दिया है इन क्वेश्चन नंबर 9? इन ट्रायंगल PQR एंगल R इज π/2. राइट एंगल ट्रायंगल है, R एंगल π/2 है. एंड tan of P/2 and tan of Q/2 are the roots of the equation ax² + bx + c = 0. And the options are, first option है मेरा b = c, second option is b = a + c, third option is a = b + c, and the last option is c = a + b. तो R एंगल मुझे π/2 दिया है, R एंगल दिया है π/2. सो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल P. यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल लेके आपको समझ में आएगा. दिस एंगल R इज राइट एंगल PQ. R एंगल इज राइट एंगल and it is given that tan P/2 and tan Q/2 are the roots of the equation ax² + bx + c = 0. So given quadratic equation is ax² + bx + c = 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं tan of P/2 और tan of Q/2. So let these roots are alpha and beta. If alpha and beta are the roots of this quadratic equation, then sum of the roots is -p/a and product of the roots is c/a. So here sum of the roots means tan P/2 plus tan of Q/2 alpha plus beta minus b/a होगा, and product of the roots alpha into beta यानी tan P/2 into tan Q/2 is equal to c/a. सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मल्टी कंसेप्ट, एक से ज़्यादा कंसेप्ट उसमें यूज़ करनी पड़ती हैं. अब क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज आपको होना जरूरी है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करते आने चाहिए. सो देयरफॉर अब मैंने लिखा है सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इसका यूज इसलिए दिया था कि इसका यूज हमें करके ही आंसर मिलेगा. अब R angle is π/2, so P and Q are acute angles. So P plus Q कितना होगा? π/2, क्योंकि ये π/2 है. Sum of the two acute angles of the right angle triangle is π/2. इसका tan लेते हैं tan ऑफ. सो एक काम करेंगे, फर्स्ट वी विल डिवाइड बाय 2, क्योंकि tan P/2 Q/2 एंगल्स मिलने चाहिए. सो P plus Q/2 will be equal to π/4. Now I will take the tan ratio on both sides. So it is tan of P/2 plus Q/2. tan of P/2 plus Q/2 equal to tan of π/4. तो tan of π/4 कितना होगा? 1. Now this is tan of a plus b. This is what? tan of a plus b. तो tan of a plus b का फॉर्मूला यूज करेंगे. tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b equal to 1. ओके. अब इसमें हम वैल्यू इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. tan P/2 प्लस tan Q/2 का वैल्यू है -b/a अपॉन 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2 की वैल्यू क्या है? c/a इज इक्वल टू 1. तो हम इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये बनेगा -b/a अपॉन a माइनस c by a. So this a will get cancelled, will be equal to 1, and minus
से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो ये बनेगा b अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू 1, और यहाँ से मुझे b इक्वल टू सी माइनस ए मिला है, यानी c इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी. So C equal to A plus B is answer to this question, and the last option is correct. C equal to A plus B. Okay students, so very nice question and previous year का question है competitive AIIEEE का. So this was the question number 9. अब solve करते हैं next question number 10. Question number 10 of solution of triangle for MSTCT. 10 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, सी ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 10 में काफी इजी क्वेश्चन है. इन ट्राइंगल ABC आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot of A plus B by 2 into tan of A minus B by 2. Cot of A plus B by 2 into tan of A minus B by 2, and my options are A plus B upon A minus B, A minus B upon A plus B. थर्ड ऑप्शन है मेरा a अपॉन ए प्लस बी, एंड द लास्ट ऑप्शन है b अपॉन ए प्लस बी. तो इस टाइप के टर्म्स हमें किस फॉर्मूले में दिखाई दे रहे थे? लास्ट लेक्चर देखिए, इस टाइप के टर्म्स सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के किस फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहे हैं? नेपियर्स एनालॉजी, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू, tan ऑफ b माइनस सी बाई टू, tan ऑफ c माइनस a बाई टू, इसी टाइप के टर्म्स है. एंड नेपियर्स एनालॉजी हम कब यूज करते हैं? व्हेन डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स इज गिवन, then we can solve the problem by using the Napier's analogy. तो यहाँ पे Napier's analogy हम यूज करेंगे. We have to find the value of cot of A plus B by 2 into tan of A minus B by 2. So Napier's analogy का ही फॉर्मूला यूज करेंगे. tan of A minus B by 2 क्या होता है? tan of A minus B by 2, सीधा फॉर्मूला. tan of A minus B by 2 होता है A minus B into A plus B into cot बचा हुआ एंगल C by 2. ओके, अब इस cot C by 2 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊं तो cot यहाँ पे होगा 1 by cot और 1 by cot होगा tan. तो cot को अगर मैं इस साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये बनेगा tan. सो दैट इज tan ऑफ C by 2 इंटू दिस tan ऑफ A माइनस B by 2. कुछ स्टूडेंट के सामने आंसर आ गया है. क्या आंसर होगा? ए इसका आंसर. हाउ सियर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. मैंने बोला था क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. आप इसका क्या करने का है? व्हाट इज दिस? tan ऑफ c बाई 2 इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल की कंडीशन तो है. सो tan ऑफ c बाई 2 क्या होता है? tan ऑफ c बाई 2 इज cot ऑफ a प्लस b बाई 2. tan ऑफ c बाई 2 इज cot ऑफ व्हाट? a प्लस b बाई 2 into tan of this a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b. This and this is same. कैसे आएगा देखिए? a plus b equal to c लिखेंगे. सॉरी, a plus b plus c होगा पाई. ट्रायंगल की कंडीशन है तो a plus b equal to होगा पाई माइनस c. a प्लस बी बाई 2 होगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. इसका tan इक्वल टू इसका tan, इसका tan इक्वल टू इसका tan. tan ऑफ व्हाट? पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, एंड tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cot थीटा. सो ये बनेगा cot सी बाई 2. इसलिए मैंने सॉरी, यहाँ पे हमने अगर cot लेते थे तो यहाँ पे भी cot आएगा और cot का क्या बनेगा? tan. सो देयरफॉर tan ऑफ c by 2 इज व्हाट? cot ऑफ a plus b by 2. सो cot ऑफ a plus b by 2 इज tan c by 2 एंड tan ऑफ a plus b by 2 इज cot c by 2. दोनों करेक्ट हैं. सो हियर द आंसर टू दिस, ये मेरा एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू मुझे पूछी थी. So answer is a minus b upon a plus b, and this is in the option B. So this was the 10 students. Now see the question number 11. Next question solve करेंगे. Question number 11. So see the question number 11.
11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, सी द क्वेश्चन नंबर 11, सी द क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 नंबर का क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। इन ट्रायंगल एबीसी ए साइड की लेंथ दी है 3, बी दिया है 4, साइन ए की वैल्यू दी है मुझे 3/4 एंड आई हैव टू फाइंड द एंगल बी एंड द ऑप्शंस आर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या क्या दिया है, साइड ए दिए हैं मुझे 3, a इक्वल टू 3 इज गिवन, b इक्वल टू 4। सिंपल क्वेश्चन है, साइन ए दिया है मुझे 3/4, ए साइड दी है, ए एंगल का साइन दिया है, बी साइड दी है और एंगल बी पूछा है। अब यही से मुझे समझ में आना चाहिए कि कौन सा रूल हमें यूज करना पड़ेगा। सिंपल है, साइन रूल। साइन रूल से ये प्रॉब्लम इन द 2 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। तो हाउ टू यूज साइन रूल। साइन ए दिया है, ए दिया है, तो साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी, और बी एंगल में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, वेरी सिंपल। सो साइन ए की वैल्यू है 3/4, ए है मेरा 3, साइन बी एज इट इज, और मेरा बी कितना है 4, ए इज 3, बी इज 4, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। So this will give 1/4 equal to sin b/4, 4 get cancel, problem is solved। sin b मेरा 1 है, ट्रायंगल दिया है तो b कितना होगा 90 डिग्री। So this is the triangle, right angle at B, and B is the 90 degree, and this is in the option B। Very simple question। Now see the next question number 12, last problem हम solve करेंगे। और इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के हम 3 लेक्चर्स लेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के, 36 प्रॉब्लम। ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सभी वीडियोज केयरफुली लास्ट तक देखने के हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फॉर एमएचटी-सीटी। सो क्या दिया है इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, इन ट्रायंगल एबीसी मुझे दिया है cos A अपॉन ए इक्वल टू cos B अपॉन बी इक्वल टू cos C अपॉन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कल के, उसमें मैंने ये कंडीशन दी थी। इस कंडीशन को देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा ट्रायंगल होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो दिस कंडीशन इज गिवन cos A अपॉन ए इक्वल टू cos B अपॉन बी इक्वल टू cos C अपॉन सी, एंड ए साइड दी है 1/√6, a is 1/√6, and I have to find the area of triangle in square units। ट्रायंगल का एरिया पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मुझे पता चल गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका एरिया फाइंड आउट करने का है, तो फॉर्मूला इज वेरी इजी। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एंड द गिवन ऑप्शंस आर 1/24, √3/24, ऑप्शन सी है 1/8, and the last option is 1/√3. So here a by cos A is equal to 1/cos B equal B by cos B equal to C by cos C। So यहाँ से मुझे पता चलता है this triangle is equilateral। Triangle ABC is what? Equilateral triangle, and area of this triangle ABC which is equilateral is 1/√3 into side square। और मुझे साइड A दिया है, A कितना दिया है 1/√6, A कितना दिया है 1/√6, A is the side of the triangle। So this is √3/4 into side square, तो A square हो जाएगा, साइड स्क्वायर कितना होगा 1/6, and this is √3/24। √3/24 is the answer to this question, and this √3/24 is in the option B। ओके स्टूडेंट्स, तो कंडीशन है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर याद रखेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो वेरी वेरी important। Okay students, so these were the 12 important problems for MHT-CT of solution of triangle।
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से 24 अगले 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रुकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।